Hello everyone, this is Shivika. Welcome back to English class. Students, today I am going to continue this class with grammar and the topic is present tense. Basically there are three tenses: past tense, present tense and future tense. In this class we will study about only present tense. So first of all, have a look. There is a tense chart: present tense, past tense and future tense. A verb which refers to a present time is said to be in the present tense. For example, I write, I study. Next is past tense. A verb which refers to past time is said to be in the past tense. For example, I wrote, I studied. Next is future tense. A verb which refers to future time is said to be in the future tense. For example, I will write, I will study. So there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Now look at these three sentences. First is Ayan go to school every day. Second is Ayan went to school yesterday. And third is Ayan will go to school tomorrow. So these are three sentences. The first sentence tells us something that Ayan does regularly. It is about the present time. The second sentence tells us something that Ayan has already done. This is in the past tense, okay? Next is Ayan will go to school tomorrow. The third sentence tells us something that Ayan is going to do later or in the future. It is about the future time. It is about the future tense. I hope it's clear. Now look at the table. Note how verbs change with time. टाइम के साथ वर्ब किस तरह से चेंज होती है ये हम इस टेबल में देखेंगे. सो हैव अ लुक. फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस, अंडर विच कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect tense and present perfect continuous tense. So first of all we will start with simple present. What is the rule of simple present? Have a look. Subject plus verb, first form of the verb is that we are going to use with it. We use present simple when we are talking about some habits, routine and when we are talking about some facts. For example, have a look. I play football every day. This is a routine that he plays football every day. She works as a trainer. She works as a trainer. That's a fact about her life. So we are writing here, she works as a trainer. So you can see a difference that here we are using S and here we are not using S. So you have to remember that with I, we, you, they, we do not write S with the verb, but with he, she, it, we always add S, okay? I hope it's clear. Next is present continuous tense. The rule for present continuous tense is subject plus ismr plus first form of the verb plus ing. With it we add ing to it. So when we use is, when we use am, when we use are, it's very simple. Have a look. So with I we use am, with he, she, it we use is, and with you, we, they we use are. So present continuous tense is used when we are talking about actions which are happening right now and we are speaking. So for example, they are having lunch and I am singing at church today. In another way, we are using it is when we are talking about some changes that are taking place right now. For example, the stocks are dropping constantly due to the economy. The next one is present perfect tense. The rule for present perfect is subject plus has have plus verb. With that we use past participle or the third form of the verb. So with I, we, you, they we use have, and with he, she, it we use has. So present perfect is used when we are talking about experiences and when we are talking about recent actions and
events. For example, she has watched that show 3 times this week. So this is an experience of her during her week. He has drunk tea. This is a recent action. Okay. Next is present perfect continuous tense. So present perfect continuous is used when we are talking about actions that started in the past and are still continue. And the rule for it is subject plus has been or have been plus verb. It means first form of the verb plus ing. Don't forget, we add ing with it. Okay. For example, it has been raining since 4 a.m. Next is he has been playing football since he was a child. So this is an action that started in the past and it is still going. टेंस 3 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल 12 टेंस हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये टेंस क्या होते हैं, किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं सेंटेंस में कि कौन सा सेंटेंस पास्ट टेंस का है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टाइम का है। तो जो काम हो चुका है, जिस सेंटेंस की क्रिया से हमें ये पता चलता है कि काम हो चुका है, वो पास्ट टेंस में आते हैं। जिन सेंटेंस की क्रिया को देखकर हमें ये पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वो प्रेजेंट टाइम शो करते हैं वो सेंटेंस, यानी कि वो प्रेजेंट टेंस है। और जिन सेंटेंस की क्रिया को देखकर हमें पता चलता है कि काम आने वाले समय में होगा, यानी ना हो चुका है काम और ना ही हो रहा है, तो काम आने वाले समय में होगा। जिन सेंटेंस की क्रिया से हमें ये पता चलता है कि काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर में होगा, वो सेंटेंस यानी वो क्रिया फ्यूचर टेंस की होती है। तो सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। अयान गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अयान हर रोज़ स्कूल जा रहा है, तो क्या होगा, गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। सेकेंड है अयान वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अब येस्टरडे की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और वेंट लिखा हुआ है, तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया। थर्ड इज अयान विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कल जाएगा, अयान कल स्कूल जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई। तो अब हम देखेंगे कि हर एक टेंस को पहचानने के लिए कुछ रूल्स हैं, जिनको ध्यान में रख करके हम टेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के हम चारों पार्ट्स को देखेंगे। वैसे आपकी बुक में सिर्फ 3 पार्ट्स ही है, प्रेजेंट आई मीन सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बट हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। वर्ब या तो डू की फॉर्म में होगी या डज की फॉर्म में होगी, सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज। तो अब हम देखेंगे कि कहीं पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया हुआ है, कहीं पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया हुआ है, कहाँ पर सिंगुलर होगा, कहाँ पे प्लूरल होगा, चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये क्या है, आई प्लूरल है, यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है। तो आई वी यू दे, इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो आई वी यू दे प्लूरल है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ किए हुए हैं, लाइक प्ले, ईट, ड्रिंक।
हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ब के साथ उल्टा होता है, एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं सिंगुलर बनाई जाती है। ओके, तो आई वी यू दे प्लूरल है, इसलिए हम प्ले ईट ड्रिंक इस तरह से वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। सेकेंड इज ही शी इट। जिस भी सेंटेंस में ही शी इट आ रहा है, यानी कि अगर हम ही या शी या इट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, क्योंकि ही क्या है, वन पर्सन, शी वन पर्सन सिंगुलर, इट सिंगुलर, तो ही शी इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, लाइक प्लेज, ईट्स, ड्रिंक्स। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले उसके रूल्स को समझना होगा। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब। वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आपको पता ही है। ही शी इट के साथ इज लगेगा और यू वी दे के साथ आर यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो अगले टेंस की बात की जाए तो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का भी एक रूल है, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज़ या हैव लगती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हैज़ कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, तो देख लेते हैं, चलिए। आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगी, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और ही शी इट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो सब्जेक्ट प्लस अगर आई वी यू दे में से है तो हैव यूज़ करेंगे और अगर ही शी इट है तो हैज़ यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो पहचान हो गई हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी अपना एक रूल है। इसमें क्या होता है, एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यू। इट मीन्स वो एक्शन जो स्टार्ट तो यानी शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी उनमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 4 AM, यानी कि 4 बजे से बारिश हो रही है, यानी कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका भी अपना एक रूल है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ या हैव, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में था वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है। हैज़ कहाँ पे लगेगा हम आपको बता चुके हैं और हैव कहाँ पे लगेगा वो भी पता है आपको। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन द बॉक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिसका यूज़ करके आपको सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो वर्ब्स हैं सेट, वाटर, लिव, ड्रिंक, फॉल, गो। फर्स्ट सेंटेंस इज माई ग्रैंडफादर इन मुंबई। So here we will use lives. My grandfather lives in Mumbai. क्योंकि हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब को यूज़ करना है। तो live है तो यहाँ पर lives हो जाएगा। My grandfather lives in Mumbai. Second is the sun set in the west. Set है तो अब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो sets हो जाएगा। The sun sets in the west. The sun, ठीक है, क्या है सन? सन है हमारा सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म।
सेट्स. ओके, माई ग्रैंडफादर क्या थे? माई ग्रैंडफादर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. तो यहाँ पर लिव का लिव्स हो जाएगा, क्योंकि हम SEIS लगा करके वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं. तो माई ग्रैंडफादर मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, लिव्स हो जाएगी. द सन, सन सिंगुलर है तो सेट्स हो जाएगा, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी. थर्ड इज द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स मोर देन वन, मोर देन टू. द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. सो हियर वी विल यूज ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक क्या है? प्लूरल वर्ब है. ओके, सो द चिल्ड्रन प्लूरल, ड्रिंक वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज करेंगे. द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. नेक्स्ट इज ही water the plants daily. He singular. Okay, so here we will use waters. Okay, he waters the plants daily. Next is they. They क्या है? More than two, more than one means plural. तो they के साथ we will use go, not goes. So they go to church regularly. Next is rain falls from the clouds. Let's take one more exercise. Next is complete the sentences using the verbs in the box in present perfect tense. You can use not where necessary. Okay, so first sentence is I dash the letters. Here we will use I have posted the letters. I, we, you, they के साथ have यूज होता है और he, she, it के साथ has हम पहले ही बता चुके हैं. तो यहाँ क्या होगा? I have, I, we, you, they अगर आ रहा है तो have यूज होगा. And posted the letter, posted यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर post की थर्ड फॉर्म यूज होगी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और I, we, you, they के साथ have और he, she, it के साथ has यूज होगा. That's why we are writing here I have posted the letters. Somebody has stolen my purse. Steal है तो steal का थर्ड फॉर्म stolen हो जाएगा. Somebody has stolen my purse. She has यूज होगा. He, she, it के साथ has, तो she has cooked, तो cook की थर्ड फॉर्म cooked. She has cooked the dinner. They के साथ have, so they have. Sell है तो क्या होगा? थर्ड फॉर्म sold. They have sold out the tickets. Next is hurry up. The train has arrived. Next is they है तो have यूज होगा. They have buy का bought. They have bought a new house. We have not planted our holiday yet. Next is he has written 5 letters to her. Let's take one more exercise. Complete the sentences using the verbs given in the brackets. Use simple past or present perfect tense. यहाँ आपको दो टेंस को यूज करना है. सिंपल पास्ट में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज होता है. आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज़. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको यूज करना है. ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दी गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को देखना है कि ये किस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है. उसी के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट्स में वर्ब्स दी गई हैं उनका सिलेक्शन करना है प्रॉपरली. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है लास्ट ईयर वी डैश टू इटली. अब लास्ट ईयर की बात हो रही है यानी पिछले साल की. इट मीन्स पास्ट टेंस की हो रही है. तो गो है, वर्ब लिखी हुई है, तो गो का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म गो का वेंट. लास्ट ईयर वी वेंट टू इटली. नेक्स्ट इज इमली एंड मॉली डैश देयर लंच येट. अब ब्रैकेट में वर्ब जो दी हुई है वो नॉट और ईट है. ठीक है, नॉट ईट के साथ हमें यूज़ करना है. इमली एंड मॉली मोर देन वन यानी प्लूरल है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. इमली एंड मॉली के लिए हम लोग दे का यूज़ करेंगे. तो आई, वी, यू, दे के साथ क्या होता है? हैव यूज होगा. तो
इमली एंड मॉली हैव नॉट, ईट का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ईट का क्या होता है, ईटन। तो इमली एंड मॉली हैव नॉट ईटन देयर लंच येट। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डैश all the new words, full stop, you needn't worry about the test। ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो यू हैव, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड। यू हैव लर्नड ऑल द न्यू वर्ड्स, यू नीडंट वरी अबाउट द टेस्ट। नेक्स्ट इज I dash my aunt last week। ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई है वो विजिट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई डैश माई आंट लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात हो रही है, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो विजिट का क्या हो जाएगा, विजिटेड हो जाएगा। सो आई विजिटेड, यहाँ हैज़ या हैव नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। सो आई विजिटेड माई आंट लास्ट वीक। नेक्स्ट इज आई हैव नेवर ट्राइड चॉकलेट फज आइसक्रीम बिफोर। नेवर ट्राई है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आई के साथ हैव यूज होगा। आई हैव नेवर, ट्राई का ट्राइड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, ओके। सो आई हैव नेवर ट्राइड चॉकलेट फज आइसक्रीम बिफोर। नेक्स्ट इज जॉन एंड पैगी डैश देयर होमवर्क, नाउ दे कैन वॉच द फिल्म। वर्ब दी गई है ब्रैकेट में डू। सो जॉन एंड पैगी इट मीन्स मोर देन वन, यानी प्लूरल है, दे है, सो वी विल यूज हैव। जॉन एंड पैगी हैव देयर होमवर्क, नाउ दे कैन वॉच द फिल्म। पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे और ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ जॉन एंड पैगी क्या है, हैव यूज़ करेंगे यहाँ। सो दे हैव डन देयर होमवर्क, नाउ दे कैन वॉच द फिल्म। नेक्स्ट इज आई डैश माई फ्रेंड 2 days ago। 2 days ago यानी 2 दिन पहले, ओके। एंड द वर्ब इज मीट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है वो मीट है। अब हमें बताना है कि ये पास्ट टेंस क्या है, सिंपल पास्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। आई डैश माई फ्रेंड 2 days ago, 2 दिन पहले, तो ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, हमें सिर्फ वर्ब चेंज करनी है। तो आई के साथ क्या होगा, मीट का मेट। आई मेट माई फ्रेंड 2 days ago। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एक्सरसाइज। What are these people doing? Use the following verbs to complete the sentences in present continuous tense. Present continuous tense, okay? So there are some verbs like watch, paint, write, cook, sleep, read, play, skate and fight. So these are some verbs. Use the following verbs to complete the sentences in present continuous tense. With present continuous tense, we will use always subject plus is MR plus first form of the verb with ing. Okay. So let's start. First sentence is she is cooking food. With she we will use is, and with cook we will use ing form. It will be cooking. So she is cooking food. Okay. Next is he dash a newspaper. So with he we will use is, and with read we will use ing form. It will be reading. So the sentence will be he is reading a newspaper. Next is he. He singular है, यहाँ भी हम he के साथ is use करेंगे. So he is. With watch we will use ing form. It will be watching. So he is watching TV. Next is she is writing on the blackboard. She है singular, she के साथ हम is use करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और ing फॉर्म यूज होगी। तो राइट है वर्ब, तो वर्ब की ing फॉर्म राइटिंग। सो द सेंटेंस विल बी शी इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज द बेबी। एक ही बच्चे की बात हो रही है, सो द बेबी इज
स्लीप के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी तो स्लीपिंग हो जाएगा. सो द बेबी इज स्लीपिंग. नेक्स्ट इज दे, मोर देन वन. ओके, दो लोग हैं तो यहाँ दे यूज हुआ है. दे के साथ हम इज नहीं यूज करते हैं, दे के साथ हम हमेशा आर यूज करेंगे. तो दे आर. विथ ले वी विल यूज आईएनजी फॉर्म इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, सो दे आर लेइंग द टेबल. नेक्स्ट इज ही, अगेन सिंगुलर. ही इज, पेंट के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी. सो द सेंटेंस विल बी he is painting. Next is the boys. So here we will use, for the boys we will use are, and with fight we will use ing form to change into present continuous tense. So the sentence will be the boys are fighting. Next is he is skating. Skate is a verb. With verb we will use ing form, it will be skating, and with he we will use is. So the sentence will be he is skating. Okay students, it's over for today. I hope you enjoyed the class. If you have any query, any confusion regarding the topic present tense, you can ask me without any hesitation. Okay, next time we will meet with a new video very soon. Until then, keep studying, stay at home, be safe. Okay, goodbye.